Let's come to restart. Good afternoon, students. Today in physics, I am going to start a new topic: equipotential surfaces. In equipotential surfaces, at first you have to require a clearer topic: direction of electric field. Direction of electric field. You know already that the direction of electric field due to a point charge away from the point charge. This is the direction of electric field. Okay, electric field means E, electrostatic field. Okay. Similarly, due to negative point charge, if this is a negative point charge, then the direction is same but opposite, यानी कि towards the charge. This is the direction of electric field due to negative point charge. Okay. Similarly, if you have a positive charge and here a negative charge, then the direction of electric field, you know that the direction of electric field due to a point positive charge, it's away from the point charge, but due to negative point charge towards the point charge. Okay, so if you have two equal but opposite in nature charges placed at a distance to each other, then the direction of electric field is shown as positive to negative, and this is going to like this. This is the direction of electric field. This is the direction of electric field. Okay, this is negative point charge. But if both are positive point charge, then you know that this positive charge shows the direction of electric field this side and this side. So both are repelled to each other. Both are repelled to each other. So this is the direction of electric field. This is the direction of electric field. And this is the direction of electric field. This is the direction of electric field. This is the direction of electric field. And this is away to the field. Sorry, towards the, no, sorry. This is also a positive charge. So always away from the point. And these points are called neutral point. Similarly, if you have two negative point charges, then this is similar in wave, but direction is towards the charge. Okay. We have drawn 1, 2, 3, 4, 5 figures on the board. Okay. This figure indicates the direction of electric field due to any point charge or system of charge. But today we have to clear equipotential surfaces. Equipotential surfaces. Equipotential surfaces means, at first clear this topic. Equipotential means surface means. So surface means any surface like board, roof, floor, wall,
these are called planes, yes, surfaces, but the surfaces are not just like a plane. Surfaces means a spherical surface may be possible, curved surface may be possible. So all the surfaces are called surfaces, but equipotential, potential means you know already potential, but equipotential means equal potential, equal potential at every point on the surface, then that surface is called equipotential surface. Okay, let's come to the definition of equipotential surface. It means equipotential surface means, जरा सुनिएगा ध्यान से, a surface in an electric field, a surface in an electric field where at every point the potential are same or equal, then that surface is called equipotential surface. ओके, मीन्स कि जैसे सपोज करो कि अगर कोई बुक है हमारे पास, जैसे कि ये हथेली ऐसे मैंने कर लिया, तो अगर हथेली के सारे पॉइंट्स पे चेक किया जाए कि जो पोटेंशियल्स है सब इक्वल होना, इक्विपोटेंशियल मीन्स कि पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, इट इज द मस्ट कंडीशन, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। लेकिन अब कैसे इसको मेजर करेंगे, कैसे चेक करते हैं, हम ये समझने की बात है। आप अच्छा ये चेक करो, मीनिंग समझ में आ गया होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मींस अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ओवर एवरी पॉइंट द पोटेंशियल्स आर सेम और इक्वल, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो अब जरा आओ, लेकिन अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आप पाते हो, कैसे मिलता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए सबसे पहले हमने ये फिगर खींचा है, और आप जानते हो ये प्लस पॉइंट चार्ज है और फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज होता है। और आप ये भी जानते हो कि यहाँ से अगर कुछ डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसे सपोज करो r डिस्टेंस है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, फार्मूला 1/4πε0 q बाई r, ये आपको बताया गया, q बाई, हाँ ठीक है। तो ये r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ से जितना भी इक्वल डिस्टेंस पर अगर लेते हैं इक्वी डिस्टेंस सरफेस, तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इफ यू टेक एन इक्वी डिस्टेंस सरफेस, तो इक्वी डिस्टेंस सरफेस जो होगा कैसा होगा, वो स्फेरिकल होगा ना, स्फेरिकल इन शेप। तो अगर ऐसे सारे पॉइंट को आप ड्रा करो, सारे पॉइंट को आप लेकर के आप ऐसे ड्रा करोगे, तो ये जितने पॉइंट्स इस पर दिखेंगे, तो इस सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मीन्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल इन द शेप, जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे सपोज करो कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर सेंटर पर कोई सरसों का दाना रखा, उसको आप चार्ज कंसीडर कर लो। एक फुटबॉल के सेंटर पर, जो सेंटर पर आप चार्ज मानोगे, तो जो फुटबॉल का सरफेस है उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि ये फुटबॉल का साइज जो रेडियस छोटा होगा, बड़ा होगा, तो उसी के हिसाब से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी वो छोटा होगा, बड़ा होगा। यानी कि सरफेस, द एरिया ऑफ सरफेस इज डिक्रीजेज एज वेल एज द रेडियस ऑफ और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज चेंजेज। अगर उसके साथ वो चेंज हो रहा है रेडियस, तो उसके साथ ही उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस का एरिया भी धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, यानी वेरिएबल होगा। तो ये सिमिलरली ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम, दिस इज आल्सो स्फेरिकल। बट ड्यू टू प्लस एंड माइनस, अगर प्लस और माइनस चार्ज दोनों एक साथ लेते हो तो फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस केस में अगर देखेंगे,
तो पहले सिंगल सिंगल चेक करो। अगर इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हो तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे छोटा हुआ, फिर इससे बड़ा हुआ, फिर इससे बड़ा हुआ, फिर ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। और इसी तरह इसके लिए आप चेक करोगे तो ये इसके लिए सबसे पहले छोटा लेते हैं, फिर बड़ा लेंगे। मतलब जैसे जैसे ये चलते हैं इसका थोड़ा सा ये क्या होता है कि ये ओवर्ड होता चला जाता है। ये इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इस कंडीशन में है। और अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव केसेस हुए तो उस केस में आप क्या करोगे, इस समय अगर देखो पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरह से इसको शेप आप कर सकते हो ऐसे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। और सिमिलरली आप इसको भी ऐसे चेक कर सकते हो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस आप बस इतना समझ लेना कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो, ये तो डिफरेंट फील्ड है, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब आपको बताया गया होगा कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेयर एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल, मतलब फील्ड हर जगह इक्वल फील हो, जो एक्सपीरियंस किया जब फील इक्वल होना चाहिए तब उसको यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म फील्ड में ध्यान रखना, जैसे यूनिफॉर्म फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे होता है, ये सब यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में जो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हो जानते हो वो ऐसे होता है, ये एकदम ऐसे पैरेलल ओरिएंटेड और ऐसे चलता चला जाएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म फील्ड है। ये सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये जितना देख रहे हो यहाँ पे स्फेरिकल शेप है, ये भी स्फेरिकल होगा और ये क्या होगा, प्लेन होगा। और ये सब भी स्फेरिकल होगा, लेकिन ये कुछ ओवल शेप हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा चार्जेज आप लेते हो तो ओवल शेप में चला जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मींस अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस at every point the potential are equal, then that surface is called equipotential surfaces। ये तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन पूछा जाता है कि अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा। और अगर मान लो कि यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो प्लेन होगा। समझ में आ गया? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग समझाया गया। लेकिन स्टूडेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट 2-3 कंक्लूजन है, जरा उसको आप समझ लो पहले है क्या कंक्लूजन में। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग मैंने बता दिया कि पॉइंट चार्ज जिसके कारण फील्ड क्रिएट होता है उससे इक्वल डिस्टेंस पर सारे पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन लिया जाता है, जैसा सरफेस बनेगा वही उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और उसके एवज में हम लोग 3-4 पॉइंट देखेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और देखते हैं है क्या। देखो पॉइंट नंबर 1 आप सुनते जाएंगे ध्यान से, 1 2 3 ये 3 पॉइंट आपको बताएंगे, यानी कि द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको ये हेडिंग यहाँ डालना चाहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फर्स्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट मजेदार पॉइंट है कि द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस always perpendicular to the direction of electric field। ये अच्छे से याद करिएगा, इससे क्या होता है कि आपको समझने में हेल्प मिलेगा। All the equipotential surfaces
आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अब मान लो ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो ये लाइन फील्ड का दिखेगा हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, देख रहे हो नहीं? आप जानते भी हो कि किसी सरफेस या स्फीयर लेते हो तो स्फीयर सेंटर से निकलने वाला जो पॉइंट रेडियस होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर होता है, ठीक है? तो यहाँ भी देखोगे तो ये परपेंडिकुलर जा रहा है, यहाँ भी देखोगे ये लाइन सारे परपेंडिकुलर होंगे। पहला पॉइंट फिर से सुन लीजिए, ऑल द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा। जैसे देखो यहाँ भी ये जो डायरेक्शन दिखाया गया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये जो देख रहे हो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है इसको आप सब लिख सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब ये है, ये है, ये है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आ जाओ, ये और मजेदार पॉइंट है। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि द वर्क डन, सुनिएगा फिर से ध्यान से, द वर्क डन ब्रिंगिंग अ point charge from one to another point on any surface of equipotential will be zero, will be zero। या हम ऐसे कह सकते हैं कि there are no work is done in carrying or displaced from one to another point charge, then there is no work done। Once again please, there is no work done in transfer one point charge from one point to another point on the equipotential surface। समझ में आया? यानी कि वहां वर्क डन नहीं होगा। जैसे सपोज करो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप हो, यहाँ पे एक चार्ज ले लो, तो इस चार्ज को लेकर के पूरे इसके ऊपर कहीं भी चलाते रहो, कोई वर्क नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा। लेकिन रीजन भी जानो कि ऐसा क्यों। अच्छा आप ये बताओ कि जैसे फुटबॉल के ऊपर आप हो, सपोज करो यहाँ फुटबॉल है, तो यहाँ बनेगा नहीं, लेकिन इमेजिन करो कि अगर फुटबॉल है तो फुटबॉल अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कह रहा है कि एक चार्ज को उस फुटबॉल के कहीं भी रखो, यहाँ 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 कहीं भी चार्ज को ले जाओ तो कोई वर्क नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं होगा, उसका रीजन जानो, बड़ा सिंपल मीनिंग है। अच्छा आप ये बताओ कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है, तो आप बता सकते यहाँ से इसका डिस्टेंस आर है, ठीक है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि इस समय इस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट V, ये आप जान चुके। लेकिन अच्छा ये बताओ कि अगर जितना पोटेंशियल, भाई क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल जो है वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो गया। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट पहले से है, तो यहाँ पे कुछ बदल ही नहीं रहा है, तो W कैसे चेंज होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि कोई वर्क डन नहीं होता। भाई वर्क डन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जितना डिस्टेंस यहाँ था उतना ही यहाँ, उतना ही हर जगह डिस्टेंस इक्वल है। तो इक्वल डिस्टेंस अगर जब तक रहेगा तो कोई वर्क नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि ऑन द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल, ऑन द surface of equipotential surface there is no work done transferring a point charge from one to another point on that surface, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट यह है कि देखिए there is no interfere one equipotential surface to another, there is no interference of any two equipotential surfaces। यानी कि कोई भी अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगा तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी नो इंटरसेक्ट एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब ऐसा नहीं था, जैसे मैंने इधर खींचा था ना कि एक पॉजिटिव था
और एक नेगेटिव था, तो इसके कारण जो फील्ड ऐसे चलेगा, इसके कारण ये फील्ड हो गया, तो इसके कारण ये फील्ड हो रहा है। तो ऐसे नहीं कि ये कट जाए, ये जो कट गया समझ लो तो ये सही नहीं है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको केयरफुल रहना चाहिए इस पे, क्योंकि इस पे कुछ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। ओके, सो नाउ I hope that it is clear the equipotential surfaces, this topic. Okay. Now, let's come to start another topic, just like relation between E and V. What is difference here? Relation between E and V. So, students, E and V, you know already separately that E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square, and V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r. Okay. This formula indicates that the electric field due to a point charge at a distance small r. Okay. This is indicates that this is called electric potential due to a point charge at a distance small r. Okay. So E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. V is equal to 1 upon 4 pi epsilon q by r. Okay. Now E is equal to this and V is equal to this. Okay. But we are going to start the relation between E and V. Okay. So at first I clean the board. So next topic, relation between E and V, और इसी में हम एक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये दोस्तों थोड़ा सा नया टॉपिक, लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इसलिए आइए जानते हैं इसमें है क्या। सबसे पहले तो आप ये जानो कि if you have a positive point charge and here a negative point charge, okay, then you know that the direction of electric field is like this. This is the direction of electric field. Okay. इसको हम लोग थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए A है और यहाँ पे पॉइंट B है, एंड हियर इज अ पॉइंट टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं, टेस्टिंग चार्ज। ठीक है। सपोज करिए कि
पॉइंट चार्ज Q से जो डिस्टेंस इसका है वो यहाँ R है, और A से B तक हम Q नॉट को A से B तक ट्रांसफर करने जा रहे हैं, डिस्प्लेस करने जा रहे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट को हम dr ले लेते हैं। A से B तक लाएंगे तो dr डिस्टेंस होगा, ठीक है। Now again listen carefully that we have a point charge plus Q, and at a distance of small r we have a positive testing charge at the point A Q naught plus Q naught. Now we have to require what will be work done in the action of testing charge bringing from A to B. A to B तक लाने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये वर्क डन, सपोज दैट कि dw इज इक्वल टू वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैं इसके पहले कल भी समझाया था कि ये नेगेटिव साइन क्यों लिया जाता है, बिकॉज r यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, तो dr जो इधर आप लेके आओगे तो आप डिक्रीज कर रहे हो ना डिस्टेंस को, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको डिक्रीज कर रहे हो, तो डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, और ये फोर्स है, ओके। dw इज इक्वल टू f माइनस dr, बट यू नो ऑलरेडी E is equal to F by Q naught. This is the formula in chapter number 1. This is the formula in chapter number 1. So E is equal to F by Q naught. So F is equal to Q naught E. So we have introduced formula F is equal to Q naught E here, and Q naught E minus dr. But if Q naught transferring in the LHS, that dw by Q naught is equal to E into minus dr, okay. If you have any problem, so please cross question. If you have any problem, please ask me cross question. Work done here, work done is equal to force into displacement, displacement taken negative because testing positive charge bring from A to B in which R is decreases, okay. So but E is equal to F by Q naught, this is the formula in chapter number 1. So F is equal to Q naught E, so F is equal to Q naught E, replace here, then in other line, if Q naught transfer in LHS, then dw by Q naught E minus dr, okay. But dw by Q naught what indicates? dw by Q naught, what the indication? dw upon Q naught is equal to E minus dr, okay. So in this section, dw upon Q naught, you know that V is equal to W by Q naught. V is equal to W by Q naught. So dV is equal to dW by Q naught. dV is equal to dW by Q naught. Because dW by Q naught means this indicates the change in potential, यानी dV. Change in potential dV, okay. dV is equal to E minus dr. But another line, E is equal to minus dV by dr. This is an important formula for you. इसी को बोला जाता है माइनस dV by dr, इसी को नाम हम लोग बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स माइनस dV by dr को ही नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। ये dV है, ठीक है।
dV by dr इज कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यही बात मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चाहें तो नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल फील्ड के इक्विवेलेंट शो किया जा सकता है। और ये फिर मैं बोल रहा हूं कि इम्पोर्टेंट है, ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खूब पूछा गया है बोर्ड में। इसको ऐसे भी पूछा गया है कि एक्सप्रेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, और तब आपको इतना देना पड़ेगा फिगर बनाकर। एक ही मार्क्स का आता है, लेकिन अब कहोगे सर 1 मार्क्स में इतना, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 मार्क्स का भी दे सकता है, मे बी पॉसिबल, 2 मार्क्स में भी इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। तो बस फार्मूला आप जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, या हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल चेंज होगा, तो उसके रेट को हम लोग निकाल लेते हैं, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेगेटिव साइन है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा ये डिक्रीज करता रहेगा, इनवर्सली रेसिप्रोकल है। लेकिन ये नेगेटिव साइन का यहाँ फिजिकल मीनिंग है, ध्यान रखिएगा, ये फिजिकल मीनिंग है। और फिर मैं बोल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अलग फॉर्म में है, ये इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसका मतलब E और यहाँ पे dV बटे dr अगर कर दे E, तो दोनों एक ही बात को बताता है। अब यहाँ पे कुछ रिमार्क्स है, जरा सुनिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है कवर करिए जल्दी। मेरी आवाज जा रही है सभी को? हेलो, हाँ। तो ये फार्मूला, लेकिन अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स मैं बताने जा रहा हूं। रिमार्क नंबर 1, रिमार्क 1 में ध्यान दीजिए। इसमें यह बताया गया, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट यहाँ है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो जो फील्ड का डायरेक्शन होता है आप जानते हो, प्लस से माइनस की ओर होगा ना। ये ई है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर डी है, ठीक है। तो चलो आप मान लो कि अगर यहाँ का पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल V प्लस dV है, ध्यान देना। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव प्लेट है तो इसका पोटेंशियल कम होगा, आपको बताया जा चुका। तो यहाँ सॉरी, तो ये यहाँ हो जाएगा V माइनस dV, क्योंकि इसका पोटेंशियल डाउन होगा। ठीक है, ये फील्ड का डायरेक्शन। तो अच्छा, इस फॉर्म में अगर देखा जाए तो अभी अभी हमने ये देखा है कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, यही था ना। लेकिन अगर इसको देखोगे तो dV का मतलब चेंज, तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो V माइनस dV, अब माइनस V होल बाई, इसके बीच का डिस्टेंस D है, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू dV अपॉन D, dV बाई D, dV बाई D आप इसको dr भी कह सकते हो। अगर यही डिस्टेंस dr होता तो हम, इसका मतलब मैं सिंपली बस यह बताना चाह रहा हूं कि E की जो वैल्यू होती है वो dV बाई D, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं V1 माइनस V2 अपॉन D, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। इसका पोटेंशियल V1 मान लो, इसका पोटेंशियल V2 मान लो, तो आप E इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई D, बस ये फिगर बना के इसको आप दिखा देना। ये रिमार्क नंबर 1 में है। आप जब नोट्स बनाओगे तो बस ये फिगर बना करके आप ये फार्मूला लिखोगे। ये V1 है, ये V2 है, V1 ग्रेटर देन V2 होगा, ये तो पता है, V1 ग्रेटर देन V2 है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, बीच दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कर सकते हैं। सेकेंड रिमार्क में चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ अगर जिसको लेना है।
सेकंड रिमार्क हम लोग के पास अच्छा रिमार्क है, जरा देखते हैं इसमें है क्या। देखो अभी अभी मैंने ये बताया था आपको कि अगर ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, इसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं, और इसमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग यहाँ ले लेते हैं। ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इसका जो पोटेंशियल है मान लो V है, V1, और इसका पोटेंशियल V2, या V और V इधर अगर डायरेक्शन है तो V माइनस dV, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? dV हो गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस dV हो गया, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब आप ये भी ध्यान देना कि ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी है, ये भी है। और हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये निकालना है, तो E इज इक्वल टू हम चाहें तो इसको माइनस dV/dr जो बोला गया है हम उसी फॉर्म से निकालने जा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ये देखो कि V की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ये तो पता होगा सबको ना। V इज इक्वल टू इतना होता है, ये पता है सबको V। अब आप एक काम करो, अभी डिफ्रेंशिएशन एक आध दिन मैं बता चुका हूँ, 11th में भी पढ़े और डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो। आप ये बताओ कि r के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए dV/dr, तो ये तो कांस्टेंट है, यानी कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकालो, d/dr 1/r, और 1/r का फार्मूला क्या होता है आपको बताया था, ddx ऑफ 1/x। फार्मूला जल्दी बताओ क्या होता है? -1/x² होता है, याद है? -1/x²। तो इसका हो जाएगा कितना? -1/r²। समझ में आया? और ये माइनस साइन इधर खींच लो इस पार्टी में, इधर ये हो जाएगा -dV/dr, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अच्छा अब ये बताओ, देखो हम V की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, dV/dr ये डिफ्रेंशिएशन करके निकाला गया है, डिफरेंशियल आप पढ़ चुके हो। इतना मैंने इतना बताया है कि इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हो। मैंने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, माइनस को इधर ले लिया, तो हमारे पास इतना बचा। लेकिन आप ये भी जान लो कि ये जो सेक्शन दिख रहा है आप जानते हो क्या है ना, ये यही तो E है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है, जबकि V में केवल R होता है। बस इतना ही फर्क है E और V में। E और V में केवल एक R का डिफरेंस आता है, कहीं भी देखोगे। और ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये V स्केलर क्वांटिटी। ये सारे फर्क को अच्छे से आप क्लियर करो। तो देखो प्रूफ हो गया कि E की जो वैल्यू हमने निकाल लिया वो -dV/dr, ये प्रूफ मैंने कर दिया। इसको मैंने वहां भी समझाया था, यहाँ ये रिमार्क नंबर 2 में आप इसको डाल लेना कि V की वैल्यू से कैसे dV/dr, बस उसका डिफरेंशियल कर दो, E निकल जाएगा। तो ये इसका सेकंड रिमार्क था दोस्तों। तो ये आपका आज का टॉपिक जो था इसको क्लियर कर लीजिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो अर्लियर टॉपिक आप पढ़ रहे हो पीछे डेली, उन टॉपिक्स में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट किसी को होती है, लाइव क्लास में ऐसे अपना बटन अनम्यूट करके क्वेश्चन मुझसे आप कर सकते हो, ठीक है। हैव यू एनी प्रॉब्लम फॉर टुडे क्लास? हैव यू एनी प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट? यस। हाँ तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? तो दिक्कत क्या है उससे? वही हम करेंगे, यहाँ भी कर देंगे, वही भी कर देंगे, यहाँ भी माइनस डेल भी कर देंगे। इसको आप डेल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डेल भी और डी में अंतर बस इतना ही होता है कि ये स्मॉलेस्ट, ये मतलब थोड़ा बिगर वैल्यू है, लार्जर वैल्यू है, लेकिन जब डी लग जाएगा तो वे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। बस इतना ही फर्क है। आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे तो मैंने बताया होगा वहां पे।
कि क्रोनिकल, इसको क्रोनिकल डेल्टा बोलते हैं और ये डिफरेंशियल का डेल्टा है, और एक डेल्टा ये होता है। तो ये सबसे बड़ा चेंज है, ये उससे थोड़ा कम चेंज है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट चेंज है ये। तो हम लोग जब ये पढ़ाते हैं तो स्मॉलेस्ट चेंज के फॉर्म में ही रख के पढ़ाएंगे। समझ में आया? हाँ, अरे महाराज कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल हो तो रिजोल्यूशन फॉर्म में ना आएगा। पता नहीं कौन सा वीडियो देख रहे। हमारे ये कहने का मतलब है कि ये जो dv बाई डी आर हम लोग स्मॉलेस्ट चेंज के केस में यूज करते हैं, और जब स्मॉलेस्ट चेंज पता चल जाएगा तो कुछ भी पता चलाया जा सकता है। ये इसका बेस है। ये मतलब कैसे कौन कह दिया कि हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं एक्सप्रेस कर सकते। अभी तो आप मैथ के स्टूडेंट हो कि बायो के? क्या नाम है? हाँ, हर्षित। अच्छा, हाँ तो भैया ये पहले जान लो कि अच्छे से ये इस जैसे कि डेल वाई और ये डी वाई, इसमें पहले फर्क जानो कि क्या फर्क होता है। ये फर्क आपको बताया जा चुका है जब डिफरेंशिएशन मैंने स्टार्ट किया था क्लास 11th में, वहां इसको समझाया गया है। ये क्रोनिकल डेल्टा जो है कुछ सम बिगर चेंज माना जाता है, कुछ बड़ा चेंज है। जो जैसे कि मान लो, अब पूछ रहे हो तो समझ ही लो भैया। देखो जैसे सपोज करो ये चाक है, तो चाक को मैंने जब इतना तोड़ा तो थोड़ा सा चेंज हुआ, ये दिख रहा है ना। तो इस समय जो इतना बड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ ये है ये वाला डेल। इस डेल का प्रयोग करेंगे तब ये इतना चेंज। लेकिन जब इस डी का प्रयोग करेंगे तो इतना चेंज करना है, इतना चेंज करेंगे कि इससे कम चेंज पॉसिबल नहीं होना। ये सबसे स्मॉलेस्ट चेंज है। ये हम चाहें तो और कर सकते हैं, लेकिन इतना कम चेंज करना है कि उससे कम चेंजेस पॉसिबल ना हो। तो इसलिए इसको हम लोग डी के फॉर्म में यूज करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप कहोगे नहीं ये रॉन्ग है तो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है ना? आप लाखों वीडियो देख लो, मुझसे नहीं मतलब। तो इस समय ये dv बाई डी आर, इसको मैंने क्या कहा कि इसको मैं चाहूं तो डेल v बाई डेल आर लिख सकता हूं। ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप इसको भी रॉन्ग नहीं कह सकते। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म में मैं बता रहा हूं कि स्मॉलेस्ट चेंज है ये। तो उसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़िए। ये बस चेंजेस समझो कि यहां से यहां तक जाते हो तो चेंजेस कितना दूर लेते हो। भाई ये कुछ दूर था तो इसलिए उसने डेल ले लिया होगा। सब मैं दिखा भी रहा हूं दूर है तो ये डेल का प्रयोग हो जाएगा, ये सही है। लेकिन ये जो मैंने डी लिख दिया बहुत स्मॉलेस्ट चेंज के केस में है। तो ये सब कुछ अपने अंदर लेके बैठा हुआ है, जबकि ये थोड़ी सी वैल्यू लेके बैठा हुआ है। बस इतना जान लो। ये सब कुछ अपने पास ले, बस इसी का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं ना, अभी तो आप इंटीग्रेशन पढ़े नहीं हो। ज्यादा मजा डिस्कशन में तब आएगा जब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ लो, उसके बाद जब फिजिक्स पढ़ोगे जितना क्वेश्चन पूछोगे मजा आएगा। ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा ना तो तुरंत तुम यहां पहुंच जाओगे। यहां से डिफरेंशियल करके यहां पहुंचे हैं ना, इसका इंटीग्रल अगर जानते तुम यही बताऊंगा तो पहुंच जाओगे यहां पे। तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का सब चक्कर है, उसको पहले अच्छे से क्लियर करो। जिसको प्रॉब्लम है बिल्कुल पहले दिन का मेरा लेक्चर जो है उसको आप पढ़ो। एनी अदर प्रॉब्लम? कोई और प्रॉब्लम किसी को? चलिए क्लास में अभी आप कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना? क्लास में कंटिन्यू रहेंगे।